مبارک نام میں آپ سب کو اسلام اور آپ سب کو تمام چرچ بورڈ کی طرف سے میری طرف سے پادری صاحب کی طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ کلام خدا میں سے جو پاسٹر شہزاد عرفان صاحب نے کلام خدا میں سے تلاوت کی ہے، آئے ہم اس پر غور کریں گے جو آج کے دن کی مناسبت سے تلاوت کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کلام خدا میں سے ہم چھٹی آیت کو ایک بار آگے پیچھے پڑھیں۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی چھٹی آیت، وہ یہاں نہیں ہے۔ سب نے بولنا ہے، سب نے خداوند کے کلام کو اپنے منہ سے نکالنا ہے۔ ایک ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ سب پڑھیں، آپ سب مبارک ہوں۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ آئیں چادروں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، یہاں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس فتح مند دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ جلال کے بادشاہ، جس میں تیرے بیٹے یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی، تیرے لوگوں نے جی بھر کے تیری پرستش کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے۔ خداوند، تیرے لوگ تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے، اس سے پہلے کہ اس پر غور کریں، گزشتہ ہفتہ گزرے اتوار سے لے کر ہم اسی جشن کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر ان سارے واقعات کو دہرا رہے ہیں، پرستش کے وسیلہ سے، عبادات کے وسیلہ سے ان کو یاد کر رہے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے اس زمین پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا۔ ہم نے پچھلے اتوار کو، جو ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، خدا یسوع کے شاہانہ جلوس کی یادگاری کی کہ خدا یسوع یروشلم میں شاہانہ جلوس کے ساتھ داخل ہوئے اور پھر وہاں پر خداوند یسوع کے لیے لوگوں نے کپڑے بچھائے، ڈالیاں بچھائیں، ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ میرے عزیز، پھر ہم چند ہی دنوں کے بعد جمعرات کی شام کو اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ خدا یسوع نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح
ہوا بدن اور خون اپنے لیے لیا، اور جمعرات کی رات کو خدا یسوع باغ گتسمنی میں پکڑے گئے، رات بھر پیشیاں ہوتی رہی، اور جمعے کے روز خدا یسوع کو صلیب پر مصلوب کر دیا گیا۔ جمعے کو خدا یسوع مسیح کو صلیب سے اتار کر دفن کر دیا گیا، کیونکہ یہودیوں کے مطابق ان کے لیے سبت بڑا پاک دن تھا، اور سبت کے دن وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے کہ کوئی صلیب پر لٹکا رہے۔ اس لیے انہوں نے ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی، لیکن خدا یسوع نے اس سے پہلے ہی اپنی جان دے دی، اور خدا یسوع کو قبر میں اتارا گیا۔ اور پھر جب سبت کا آرام کرتے ہیں تو مریم مگدلینی اور دوسری مریم عورتیں قبر پر اتوار صبح جس طرح آج ہم نے اس کی یاد میں یہ جشن منایا ہے زندہ ہونے کا، وہ عورتیں یسوع کی قبر پر خوشبو لے کر جاتی ہیں، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ انہیں فرشتہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، جو مصلوب ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ میرے اس سے پہلے کہ فرشتہ عورتوں کے ساتھ ہم کلام ہو، اس سے پہلے کہ عورتوں کو فرشتہ یہ پیغام دے، اس سے پہلے کہ عورتیں قبر پر خوشبو لگانے کے لیے پہنچیں، میرے عزیز ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ تاریخ کا یہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ جب خدا یسوع المسیح کو جمعے کے روز قبر میں اتارا گیا، اور سبت کا دن آرام کا دن تھا، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو الگ صبح رونما ہوا۔ میرے عزیز فرشتے نے اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ کہاں؟ قبر میں۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں، یہ کوئی خواب خیال نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ نبیوں کی پیش گوئی کے مطابق اور خدا یسوع المسیح کے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اس بات کو واضح کیا ہے، اس سزا کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم کلام خدا میں دیکھیں، جس طرح فرشتہ کہتا ہے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ میرے عزیز مسیح کی قیامت کی تعلیم نئے عہد نامہ کا بنیادی علم ہے، نئے عہد نامہ کی بنیادی تعلیم ہے، اور نئے عہد نامہ میں قیامت کا ذکر جو ہے وہ 104 دفعہ آیا ہے۔ قیامت کا مطلب ہے زندہ ہونا، اور یسوع کے زندہ ہونے کا جو بیان ہے وہ 104 دفعہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اور مسیحیت بہت مذہب ہے جس کا بانی زندہ ہے، خالی قبر
थी। जब खुदाम यीशु हैकल में आया तो खुदाम यीशु ने ये देखकर खुदाम यीशु को गुस्सा आया। उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और लोगों को मारना पीटना शुरू किया, हैकल से निकालना शुरू किया, कबूतर फरोशों के और दूसरे कारोबार करने वालों के तख्ते उलट दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सरदार कहन फकीर फरीसी कहते हैं कि तू इस काम को किस इख्तियार से करता है? किसने तुझे ये इख्तियार दिया है? तेरे पास क्या इख्तियार है? तू हमें कौन सा निशान दिखाता है? खुदा यीशु ने कहा तुम इस मकदस को ढा दोगे और मैं तीसरे दिन से फिर खड़ा करूंगा। यहूदी कहते हैं ये मकदस, ये हैकल, वो समझे कि शायद यीशु ने इस हैकल जिसमें से वो लोगों को निकाल रहा है इसके मुतल्लिक़ कहा है। वो कहते हैं इस हैकल को तो 40 वर्ष में तमीर किया गया और ये कहता है तुम इसे ढा दोगे और मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। लेकिन मेरे अजीज, यीशु ने अपने बदन की हैकल के मुतल्लिक़ कहा था। यीशु ने अपने मुतल्लिक़ ये पेशगोई की कि तुम मुझे मार दोगे, मसरूफ कर दोगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। खुदा यीशु ने ये कहा कि तुम इस हैकल को ढा दोगे और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। ये खुदा यीशु ने जब वो यरूशलेम की हैकल में गए तो ये पहले ही कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मेरे अजीज, कलामे खुदा में हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर खुदा यीशु ने इस बात का इजहार किया। अगर हम मत्ती के इंजील के 16वें बाब की 21 आयत से देखें तो क्या है, उस वक्त से यीशु ने अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया कि जरूर है कि यरूशलेम को मैं जाऊं और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाऊं और मुझे वो कत्ल करें और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। मेरे अजीज, ये एक खुदा के कलाम के मुताबिक एक खुदा का बनाया हुआ मंसूबा था और पहले ही से खुदा यीशु ने कई बार इस बात का इजहार किया कि मुझे बनो इंसान के गुनाह का कफारा देना है और फिर तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। जब खुदा यीशु को कब्र में रखा गया तो सरदार कायन और फकीर फरीसी पिलातुस के पास जाकर इसी बात को दोहरा रही हैं। वो जानते थे कि खुदा यीशु ने कहा है मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो पिलातुस के पास जाकर कहते हैं कि उस धोखेबाज ने, खुदा यीशु के लिए वो धोखेबाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि उसने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और अगर ऐसा हुआ या उसके शागिर्द उसकी लाश चुरा कर कहीं और ले जाए और लोगों को कहे कि वो जिंदा हो गया है, तो ये पिछला धोखा पहले से भी खतरनाक होगा। तो पिलातुस ने उन्हें कहा कि पहरे वाले तुम्हारे पास हैं, तुम जाकर कब्र पर पहरा बैठाओ ताकि कोई यीशु की लाश ना ले जाए और तुम्हारा ये जो मेरे सामने कहना है कि ये धोखा ना हो जाए, तुम इसके लिए पहरे वाले ले दो, कब्र की निगरानी करो, उस पर मोहर कर दो। मेरे अजीज, रोमी सिपाहियों
का यीशु की कब्र पर पहरा बैठा दिया गया। यीशु की कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था और फिर उस पर रोमियों की मोहर लगा दी गई ताकि कोई भी पत्थर को हटा ना सके। उसको उन्होंने मोहर लगाकर इस बात को उसने पक्का किया कि यीशु की लाश के नजदीक कोई न जा सके, कोई उसे छुआ न सके। उसका दावा है कि मैं जिंदा हूंगा और हम वहां पर पहरा बैठाते हैं ताकि ये वाकया रूनुमा न हो। मेरे अजीज, उधर रोमियों का पहरा लगा हुआ था, कब्र पर भारी पत्थर उसके मुंह पर था, उस पर रोमी मोहर लगी हुई थी और अतवार की सुबह को सबक के आराम के बाद एक तारीख का अजीब वाकया रूनुमा हुआ। लिखा है कि आसमान से फरिश्ता उतरा और बड़ा भूचाल आया। उस फरिश्ते ने उस पत्थर को जो यीशु के कब्र के मुंह पर रखा था, जिस पर रोमियों की मोहर थी, उस पत्थर को लटका दिया। बहुत बड़ा भूचाल आया और रोमी सिपाही जो थे वो खौफ और हैरत से खौफजदा होकर मुर्दा से हो गए। और कलाम खुदा फरमाता है कि कलाम यीशु मसीह आज सुबह तड़के ही अंधेरे होते ही वो कब्र में से कब्र की छाती को चीरता है और मौत और कब्र पर फतह पाता है। मौत को अपने पांव के तले रौंदता है और कब्र की छाती चीरकर वो एक बड़ी ललकार के साथ, जिसकी निशानदाही मुकद्दस पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 बाब में की। उसने कहा जब ये माजरा हुआ, भूचाल आया, पत्थर लुढ़काया गया और पहले वाले खौफजदा हो गए, मुर्दा से होकर गिर पड़े। खुदा यीशु ने कब्र की छाती को चीरा, ललकारा, कहा ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा दम कहां रहा। मौत फतह का रुतबा हो गई। मेरे अजीज, आज से 2000 साल पहले का ये एक अजीब वाकया है, तारीख का बहुत बड़ा वाकया है कि खुदा यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई। उसने मौत को कुचला, उसने मौत को अपने पांव तले रौंदा और वो जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, उसके जिंदा हो जाने के बाद औरतें खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर जाती हैं। वहां पर फरिश्ता औरतों को मिलता है, कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं जानता हूं कि तुम यीशु की लाश देखने आई हो, लेकिन वो यहां नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक जीवता है और जाओ उसके भाइयों को कहो कि वो जिंदा हो गया है, उसने मौत और कब्र पर फतह पा ली है। मेरे अजीज, ये तारीख का बहुत बड़ा वाकया है और खुदा यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसने मौत और कब्र को ललकारा है, रोंदा है और कलाम खुदा हमें बहुत सी शहादतें देता है कि हमारा खुदा यीशु जिंदा हुआ है। इस तरह मत्ती की इंजील के 28 बाब में हमने देखा है कि फरिश्ते ने ये गवाही दी है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो इस कब्र में नहीं है। और फिर लूका की इंजील के 24 बाब की 3री आयत में भी फरिश्ते ने औरतों को यही कहा और वो कब्र के अंदर गई और देखा कि यीशु की लाश वहां पर नहीं है। मेरे अजीज, लोग जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उससे बातें की, पतरस, मरियम, कलिपास, तोमा,
फरमाता है कि खुदा यीशु ने जी उठने के बाद खाया पिया, अपने दोस्तों के को अपने जख्म दिखाए। और कलाम खुदा में फिर ये भी लिखा है कि एक मौका पर खुदा यीशु मसीह 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिया। कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम के मुताबिक, इस तरह मैंने बताया है कि ये पहले से अदा किया गया था, पहले का मंसूबा था कि यीशु मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा होगा। तो कलाम खुदा में अगर हम ईमान की किताब उसके दूसरे बाब की 23 से 27 से आपने देखें तो लिखा है जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम, ये अमाल की किताब लूका तबीब ने लिखी है, और वो इस बात को दोहरा रहा है कि जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इल्म साबत के मुवाफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशर्म लोगों के हाथ से मसरूफ करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूँ, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसलिए मेरा दिल खुशी से और मेरी जुबान बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा है। इसलिए तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना मेरे मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचेगी। मेरे अजीज, दाऊद ने ये गवाही दी थी, दाऊद ने ये पहले ही से पेशगोई की थी, खुदा यीशु अल मसीह के मुतल्लिक बताया था। और लूका तबीब कहता है, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। दाऊद ने ये तो पेशगोई की है कि उसके जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी, वो जी उठेगा। और लूका तबीब कहता है, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में ये कह सकता हूँ और ये कहता हूँ कि वो मुआ और दफन हुआ और आज तक उसकी कब्र हमारे दरमियान है। लेकिन दाऊद ने यीशु मसीह के मुतल्लिक ये पेशगोई की कि वो मरेगा, वो दफन होगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, उसके जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। मेरे अजीज, कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है और हमारे लिए इस बात को उजागर करता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, दुख सहे, हमारा इफ्ती बना, हमारा फिदिया दिया, हमारे लिए मारा गया, कब्र में उतारा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, जो आज पूरी दुनिया उसकी याद में उसके जिंदा होने का जश्न मना रही है। और मुकद्दस पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 20 में कहता है, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब कुरिन्थ की कलीसिया में इस बात के लिए बहस हो रही थी, क़यामत के बारे, जिंदा होने के बारे, तो मुकद्दस पौलुस कहता है, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे।
کیا. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. اس نے موت کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے. اس نے قبر کی چھاتی کو چیرا ہے. اس نے للکارا ہے. اس نے فتح کا شادیانہ بجایا ہے. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیرا دم کہاں رہا؟ اے قبر تیری فتح کہاں گئی؟ میرے عزیز, ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی افضل نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے, اس نے موت اور قبر کو جیت لی ہے, اس پر فتح پائی ہے. تو اے پھر سب مل کر اس کی فتح میں شامل ہوں. سب کھڑے ہو کر گیت گائیں گے, تالیاں بجاؤ, امتوں